So our topic is around data. So what do you think? What do you think data, would we be needing more storage devices like SSDs? Let's suppose these are our SSDs, these are our hard drives, and these are our NVMEs, right? NVMEs are very NVMe. This is HDD. This is SSD. Okay, so what will be the future? Will it going to be like we will be increasing the storage? Let me erase this actually. Yeah, we will be increasing the storage, or we will be compressing the data. Will it be getting compressed, or will it be like we will be using all the devices? Let's suppose these are our devices, and we will be distributing data across the network in small packets. So every like suppose this is our data, we will be splitting it into three parts and distributing it over the network. So it will be like a distributed network, right? These devices will work as small storage devices for our this data. What will be the future? So I asked this to GPT. So what do you think? I asked this to LLM, right? LLM means large language model, right? Now when I ask this, what he answered is I am going to explain that. So the future of data, I also thought same only, that the future of data will be the combination of all three. So if you see, it will be a combination of all three. Storage devices we will be using in more and more. It will, the usage of storage devices जो है, मतलब storage devices जो अपन use करेंगे उनका usage will be very high. हार्ड ड्राइव्स ऑफ कोर्स नॉट, एनवीएमएस वी विल बी यूजिंग, एसएसडी भी यूज होगी क्योंकि रीड एंड राइट स्पीड जो होगी वो अपने को फास्ट चाहिए, तो हार्ड ड्राइव्स इज आउट ऑफ ऑप्शन, यू वोंट बी यूजिंग इट. ऑफ कोर्स चीपर cheap service providers will definitely use as hard drives because it's cheap, but read and write operations, then uh, sending it over the network, it's very expensive and user might not like it. So data is growing exponentially, right? Data is growing. So data will keep on growing. It's not like कि data grow नहीं होगा. Data तो हो गई. What we can do, we can increase the storage devices. So AI ML models also require fast read and write speeds. Cloud providers and data centers still rely heavily on centralized and scalable storage. So this storage that we have, this storage should be scalable, right? It should be scalable. It can be scalable vertically. Like vertically means we can insert more hard disk, or horizontally, which is connecting more hard drives and using that as a storage devices and distributing it according to alphabetical order or whatever you want, right? तो वो भी कर सकते हैं अपन. इवन पर्सनल कंप्यूटिंग जो 8K वीडियोस वगैरह अपन रिकॉर्ड करते हैं, दैट आल्सो रिक्वायर डेटा, दैट आल्सो रिक्वायर स्टोरेज डिवाइसेस, राइट? सो दैट इज आल्सो देयर. अब कंप्रेशन के पर बात आती है. जो कंप्रेशन, व्हाट कंप्रेशन इज, कंप्रेशन यानी स्मार्टर एनकोडिंग, राइट? कंप्रेशन ये वाला जो पार्ट है, दिस इज ऑल अबाउट कंप्रेशन. सो इफ आई जस्ट एक्सप्लेन यू, दिस इज ऑल अबाउट कंप्रेशन, राइट? कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, सी, कंप्रेशन में क्या होगा ना, वी विल कंप्रेस द डेटा एंड इट विल बी अ लॉसलेस कंप्रेशन. लॉसलेस कंप्रेशन होना चाहिए मीन्स द क्वालिटी शुडंट बी लो, इट शुड बी एज सेम एज इट वाज बिफोर. इट जस्ट शुड बी कंप्रेस्ड. अब वो कंप्रेशन कैसे होगा, क्या होगा, दैट वी नीड टू चेक. मतलब वो सॉफ्टवेयर जो भी अपन यूज करेंगे डिपेंड्स ऑन दैट, राइट? सो दैट इज देयर. So we can use better codecs like AV1 for videos, ठीक है? तो we can for videos के लिए तो of course AV1 या MP4 होता है. MP4 is pretty large, but AV1 is compressed, right? And AI is now being used to compress data much more efficiently than traditional methods, ठीक है? तो AI का भी अपन use कर रहे हैं to compress the videos and other type of data like files और JPGs. I'm not sure like how we are using AI, but कुछ तो होगा, ऐसे ही रिस्पॉन्स नहीं दिया है जीपीटी ने. एंड लॉसलेस कंप्रेशन होना चाहिए. ऑप्टिमाइज फेशियल बैकग्राउंड ब्लर करके भी अपन थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं. ऑफ कोर्स बैकग्राउंड ब्लर किया तो दैट डेटा, जो वो डिटेलिंग अपन ने जो मेंटेन की थी, लेट्स सपोज ये अपनी वीडियो है, राइट? आई थिंक ऐसे काम करता होगा, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है? तो यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह है, इनका भी कुछ डिटेल्स है, राइट? सो दिस माइट ऑल्सो रिक्वायर्ड सम स्टोरेज टू स्टोर, राइट? तो इसको अगर ब्लर कर दिया, इट मीन्स कि वो सिर्फ कलर कोड्स बहुत डिक्रीज हो जाएंगे, राइट? इट विल बी कि ये जो होगा
उसका वीडियो का साइज मच रिड्यूस हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, दिस वाज अबाउट कंप्रेशन। अब आता है डिसेंट्रलाइज। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम। ओके, ये आता है डिसेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम। नाउ इफ यू सी ना कि this is very interesting actually, decentralized storage system, and this is already implemented in various apps, right? If you see IPFS, Filecoin, Airwave, and Storage, right? Storage हो गया, Storage and Filecoin, Filecoin, Airwave, and one more is there IPFS. IPFS तो शायद आपको पता होगा, but I'm not sure, ठीक है? अगर लिनक्स पढ़ा है then you should know what IPFS is, but this use blockchain like system। ये क्या करते हैं ना, this all use blockchain like system which is also decentralized। तो blockchain like system use करते हैं, they use blockchain like system। ठीक है, let me just go down। blockchain like system use करके they try to provide the decentralized file storage system। It is resilient and it is secure, and dependency on giant data centers reduce हो जाती है। बट जो अवेलेबिलिटी है दैट इज नॉट। एक तो देखो इसमें कॉन्स क्या है इसके, ऑफ कोर्स प्रोज तो बहुत सारे हैं बट कॉन्स भी देख लो। एक तो है कि लेटेंसी होगी नेटवर्क में, है ना, क्योंकि स्टोरेज डिवाइसेस विल इज नॉट श्योर वो स्टोरेज डिवाइस जो आपका फ़ोन है, अगर आप किसी और लोकेशन पे मूव हो गए देन इट माइट बी कि डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क वी विल बी एबल टू कलेक्ट द डेटा। ठीक है, कि आपका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड प्राइवेसी, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी आर हार्डर टू गारंटी ऑफ कोर्स। तो प्राइवेसी भी इसमें थोड़ी सी हार्डर है, मतलब प्राइवेसी इज नॉट दैट गुड एंड इट्स स्टिल नीश कंपेयर टू। और ये अभी भी एक्सप्लोर हो ही रहा है, ये अभी ऐसा नहीं है कि इसको कम्प्लीटली बिल्ड कर दिया। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी विच इज दिस सिलिकॉन वैली, राइट? उसमें कैसे वो डिसेंट्रलाइज इंटरनेट बिल्ड करता है, फिर उसके बाद वो एआई पे शिफ्ट हो जाता है, एआई कंप्रेस करता है चीज़ों को, टेस्ला को हैक कर लेता है। आई एम नॉट श्योर, वो तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था, बट ठीक है, मुझे तो लगता है अगर ये हो सकता हैक, आई थिंक हैक इज पॉसिबल, बट लेट्स सी। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स सी हाउ इट गोस, बट या वो पॉसिबल है इज व्हाट आई थिंक। ठीक है, ये डिफरेंट कलर का मार्कर है एंड स्टिल नहीं। हाँ, तो ये भी एक नीश ही है कंपेयर टू ए डब्ल्यू एस जैसे ऑलरेडी अवेलेबल है। AWS हो गया, एज्यूरे हो गया, एज्यूरे, GCP, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये सब तो ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, बट दैट इज ऑल्सो वो तो अभी भी नीश ही है। ठीक है, अगर मैं इसको भी करूँ ब्लैक, आई कैन यूज ब्लैक एज वेल। ठीक है, सो दैट इज स्टिल अ नीश कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, सो व्हाट विल बी द फ्यूचर? व्हाट विल बी द फ्यूचर? फ्यूचर क्या होगा भाई? फिर फ्यूचर क्या होगा भाई? लेट्स फर्स्ट यूज दिस, लेट्स यूज दिस। ठीक है, तो फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर विल ऑफ कोर्स बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। तो कॉम्बिनेशन तो होगा ही भाई, मतलब जो चीज़ अच्छे से एक्सप्लोर हो जाए, कम आईटी में तो फायदा ही फायदा है। ठीक है, तो मोर स्टोरेज इक्वल टू बिगर वेयर हाउस। ठीक है, बिगर वेयर हाउस। एक है कि कंप्रेशन, कंप्रेशन इक्वल टू स्मार्टर पैकेजिंग, स्मार्टर पैकेजिंग, राइट? एंड द लास्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन, sorry this is L, lization is equal to turning every house, wait a minute, let me write here, turning every house into a tiny part of massive warehouse। This is what decentralized internet is। सो जो पाइट पाइपर मॉडल था सिलिकॉन वैली में ही था। जो पाइट पाइपर उस कंपनी का नाम था, डाइट डाइपर वाज अ जोक ऑन इट, बट एनीवेज
सो वो मॉडल इज नॉट फिक्शनल, वो जैसा मतलब पहले लगता था कि इट इज फिक्शनल और बहुत हार्ड है। इसमें ना एक आई थिंक विल्सन स्कोर और समथिंग वाज, कोई तो स्कोर था, आई थिंक 2.58, तो ब्रेक कर दिया था 3.5 से। सो आई थिंक दैट इज द फ्यूचर। तीनों का मिला के भी फ्यूचर बनेगा, बट इसमें से ज़्यादातर चांसेस जो है वो है कि स्टोरेज डिवाइसेस और ऑप्टिमाइज हो जाए, कंप्रेशन एल्गोरिथम मोर ऑप्टिमाइज हो जाए, डिसेंट्रलाइज। आई डोंट थिंक दिस कॉन्सेप्ट विल बिकम ट्रू, बिकॉज ऑफ कोर्स डेटा कोई कंपनी छोटे छोटे डिवाइसेस में तो नहीं स्टोर करना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ थी डिसेंट्रलाइजेशन में, कि द पर्सन or the company who has more devices has the control over all the data and becomes, और वो एल्गोरिथम में चेंज कर सकती है, which is not good. This is the con. ठीक है, अब इसमें कंट्रोल कौन करेगा ये अपने को डिफाइन करना पड़ेगा, एंड अगर इसको कंट्रोल कोई करेगा देन इट्स नॉट डिसेंट्रलाइज्ड एनीमोर। सो दैट इज द थिंग, इट इज सेंट्रलाइज्ड। परफेक्ट डिसेंट्रलाइज हो भी नहीं सकता एक्चुअली, इट कैनॉट बी परफेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड। एनीवेज, थैंक यू, बाय।